Namaskar, good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. I'm Shashidhar, your host, and we are back with our Wednesday session. And the topic for today is emotional freedom. This is very much in line with the last session that we did, which was thoughts and intuition. So it's all pertaining to the mind body or the Manomaya Kosh. So just to do a quick recap of what we did in the last session, because it is not a continuation, but more or less connected. We're talking about thoughts in the last session. We are talking of emotions in this session. Yeah. So what we had a long discussion, in fact, and I would suggest that those who had not participated should watch that recording so that you can be in tune with the discussions. Yeah. But to give you a short recap of what happened in the discussions last week. In the last session, we talked of thoughts and intuitions, basically distinguishing what are the thoughts and what are the intuitions. And the fundamental, you can say, the concept that we discussed was, whenever we are creating our life, there are three tools of creation: thoughts, words, and deeds. So thought is the primary tool of creation, and thoughts can come random. Thoughts can come randomly from the subconscious mind or the conscious mind, and people have this tendency to overthink, or a lot of overthinking is happening, a lot of negative thinking is happening, and they get drowned by the flood of thoughts. So we saw how we can choose our thoughts. That means see our thought, observe our thoughts, and choose our thoughts which are important and on which some action needs to be taken. Yes. So we saw that thought as a creative tool is important, number one. Number two, we saw thought is creative, and thought is energy, thought is vibration, and thought is the essence of everything in this universe. जो भी हमारी लाइफ में घटना घटित हो रही है या जो लोग आ रहे हैं, इन सब का फाउंडेशन हमारा इनर वर्ल्ड है, और उसका बेसिक फंडामेंटल टूल जो है वो थॉट्स है. दैट्स व्हाई थॉट्स आर सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी टॉक्ड ऑफ thoughts in details, right? And we can choose a thought. Yes, we can choose a thought, and we can also, with some practice, create a thought in the form of an affirmation or an intention, and then we can work on it to get the desired result in our life. So this is what we had discussed primarily in the last session. Yes. And we also talked about, along with thought, another important thing which is in the mind body are the emotions. Yeah. So today we are going to dwell on emotions, and along with that, we will see how we can use the emotions to create the desired results in our life with a lot of, you can say, energy and vitality. Yes, because emotion is basically energy in motion. Emotion. So energy in motion. That is what is emotion. And emotion, it gives you the power behind your actions. So we have seen that when you are enthusiastic, when you are passionate, actions are much more productive and effective. Yes. So let us look at what does emotional freedom mean. And so I will let the discussion open for everybody. Anybody who wants to share about your experience. What are emotions? What is emotional freedom? And what is your experience of how emotions can either, what do I say? Either it can flood you and you can be washed away by the emotions. Yeah, you can be swept away by the emotions, or you can choose your emotions, which means you are in control of your emotions, you are in control of your life situations and life. So if you're in control of your life, most likely you will be in control of your thoughts and emotions. How many of you agree with me? क्योंकि अगर आपके थॉट्स और इमोशंस बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड हैं, रैंडम हैं, तो उसमें आपका लाइफ का कंट्रोल भी आपका जो रहेगा वो एट रैंडम होगा. Sometimes you are success, you get success, sometimes you get failure, and things are happening to you rather than you being the creator of your life. Okay. Yes, so I've said a few things, so let's have some people share what is opening up. And meanwhile, let me welcome Tarunji. Welcome. And Light of Oneness. Yeah, welcome.
यस, कौन बोलना चाहेंगे? Sir, hi, Namaskar. Sorry to interrupt. Light of Oneness was me, Amit here. Okay, Amit. You're I had welcome. sent you a voice message that I got stuck in the traffic and signals were also bad. Okay, So, sorry, that's I think fine. so I'm just logging in, but perhaps can't participate much. No problem at all. Feel comfortable. Whenever you are okay, you can share whenever you are free. Yeah, Yeah. Thank you. great, wonderful. Yes, Leslie, you had raised your hand. Please go ahead. My fundamental question is, can we control life? So the moment आपने ये कहा कि like if you are in control of your thoughts and emotions and all those things, then you are in control of your life. तो वहाँ मेरा थोड़ा सा red flag सा जाग, because मेरी So when you say control, or when I say control, basically it's a meaning is, am I a master of my life or am I a victim of the circumstances? That is how you want to look at your life. If you think life is happening to you, if I think life is happening to me, then I am at the receiving end. I have no role in the creation of my life, है ना? तो कंट्रोल की जगह क्रिएशन ले लो. तो मैं लाइफ को क्रिएट कर रहा हूँ, लाइफ के इवेंट्स मेरे से क्रिएट हो रहे हैं, या लाइफ मेरे सामने एक, you can say it's like coming to me like a bullet. Life is throwing, you can say, stones or flowers at me. Is that my experience of life? In that case, I am not a master of my life. I'm not a master of my karma. I'm not a master of my destiny. But if I say, yes, I am a master of my destiny, to some extent, in the sense that the outside world is a reflection of the inside world. Correct? और मेरी inside world पे मेरा पूरा control अगर है, तो outside world भी मेरे हिसाब से manifest होगा. That is the point I am trying to make, right? So you have to look at it that way. Not that you can control everything in your life. No, you can never control everything in your life, because many things are going to happen which is completely out of control. But you still accept that as it is my creation. ये मेरी लाइफ में हो रहा है तो मैं ही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा कि ये मेरी क्रिएशन है, चाहे वो सफरिंग हो या मिजरी हो, सक्सेस हो या फेलियर हो, इट इज माई क्रिएशन. दैट इज हाउ वी live a powerful perspective of our life. That's what I meant. Yeah. शशि, मेरी लाइफ का मतलब ये होगा कि वो मेरे एक्सपीरियंस में है, या मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है एंड नॉट नेसेसरी कि वो सब कुछ मेरे एक्सपीरियंस में है. सो लाइक आई एम एक्सपीरियंसिंग समथिंग, वो मेरी लाइफ है, या जो हर चीज जो घटित हो रही है मेरे आसपास वो भी मेरी लाइफ है? You tell me, what is your experience? आई थिंक मेरी लाइफ वहां तक सीमित है जहां तक मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और जो घट रहा है वो मेरी लाइफ, मतलब वो लाइफ है, वो मेरी लाइफ नहीं है. Okay. So another distinction is powerfully how you can relate to it is that, see, thought, words and actions, these are energy created by me and radiated to the outside world. यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक acceptable. So this is my karma. Okay. So my karma is what? My thoughts, my words, my deeds. This I am creating an energy created by me and radiating into the outside world. And this karma will have a return journey. It will come back to me as my destiny or fate. Correct? So it will come in the form of people, situations which are coming back to me. Maybe in the form of an accident or a disease or a promotion or a great relationship or a change of residence or change of people, change of city. Whatever is happening in my life is a resultant of all the karmas which I have radiated out. They are coming back to me. That is how we live life. That is how we understand life, right? तो लाइफ दोनों है, जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो भी मेरी लाइफ है, जो इनसाइड वर्ल्ड से बाहर जा रही है वो भी मेरी लाइफ है, और जो वापस आ रहा है वो रिटर्न पाते कर्मा का, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो दैट इज माई एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. सो हैव आई मेड इट क्लियर नाउ? So both will be part of your life. Now the energy I am radiating out may not be very obvious to me also, but what is coming back to me as an experience will show that, okay, this is the return journey of my karmas. So I know what kind of karma I have radiated out. So that will be some kind of an analysis we can do on the kind of life events that are happening to us. तो अगर मेरी बीमारी आई है, कोई बीमारी आई है, obviously my karmas related to my health are not the perfect ones. बीमारी आई है ना? या तो खाना पीना ठीक करना होगा, या एक्सरसाइज ठीक करनी होगी, तो कर्मा में कुछ चेंज करना होगा. So that my experience of life is I won't say perfect, but
whatever is the desired level. Correct? अब वैसे ही है, अगर रिलेशनशिप में कोई खटास है तो ऑब्वियसली मैं उस रिलेशनशिप में क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ वही मेरा एक्सपीरियंस बन के आ रहा है. So I will look into what is to be provided in that relationship so that the relationship goes to a next level. So karma is the energy created and radiated outside, and that is in the form of thoughts, words, and deeds. And emotions will give you the power behind that actions. Yes? So look at it from that point of view and things will be clearer. Right? Just have a little introspection. Meanwhile, let us check with others what they have to share. So Vijay ji, Pooja ji, Aman ji, anything you want to share? Tarun? And welcome Anup. Yeah. Anybody who wants to share or ask before we move into the further depths of emotional freedom? So thoughts and intuitions we did in the last session, and we're talking of emotions right now. The emotion is energy in motion. That's what we had discussed. So anything that you want to share about your experience of life? So how many of us are in control of our thoughts? Control means we can choose our thoughts, we can choose our emotions. Then we have some kind of expertise or mastery in the life events we are creating. क्योंकि मेरी लाइफ है और अगर इवेंट्स मेरी लाइफ में हो रहे हैं तो मैंने ही क्रिएट किया है कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली. एंड दिस इज अ सेशन वेयर वी आर लुकिंग इनटू हाउ वी आर co-creating our life along with of course many other people जिनके साथ हमारे कार्मिक रिलेशनशिप है, उनके साथ मिलके हम एक अपने लाइफ का एक्सपीरियंस ले रहे हैं. Yes, so who would like to share? Okay, I think others are in the listening mode. So Leslie, you can go ahead if in case you want to share something else. No, I think I am still left with the introspection that मतलब जहां तक मैं समझ आता था कि लाइफ मेरे साथ लगातार, I mean, it's happening and I am in this magnanimity of the life. मैं एक छोटा सा मतलब like a very minute dust particle that I am. So I don't consider कि मैं बहुत powerful हूँ, that I'm controlling everything. हाँ, what I'm mastering in my journey is that whatever is happening to me and in my experience, मैं react ना करूँ जो मेरी conditioning के हिसाब से मैं उस पर react ना करूँ, because फिर मैं उसी vicious loop में फंसा रहता हूँ. If I can receive it, if I can observe it and then respond कि मैं यहाँ से क्या create करना चाहता हूँ, यहाँ से कहाँ जाना चाहता हूँ, यहाँ तक मुझे समझ आता है. ठीक है, वहीं से शुरू करो. यहाँ से समझ में आ रहा है वहीं से शुरू करो. तो रिस्पॉन्ड में क्या करोगे? थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स. यही है. Right. This is how you respond, correct? So you are saying whatever be the situation, whatever is coming to me, how do I choose my present karma now? Absolutely perfect. That's the right approach. Okay, so यहाँ तक मैं कहता हूँ कि this is how I control. This is where I am creating. बस जो आ रहा है, बम्बार्ड हो रहा है मेरे पास, वो मैं नहीं कहता कि वो मतलब like मैं कंट्रोल में हूँ उसके. कोई बात नहीं. तो आप यहाँ से अगर शुरू करो, जो आ रहा है उसको छोड़ दो. अभी मैंने क्या करना है वो मैंने आपने डिसाइड कर लिया. अब इसका रिजल्ट तो वापस आएगा ना. पहला क्यों आया पता नहीं है आपको, इसलिए आप उसे एक्सेप्ट कर लो. अब जो आप कर रहे हो ये कॉन्शियस है आपका, ये कॉन्शियस रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो इसका भी तो रिजल्ट आएगा ना. देन यू कैन कंटिन्यू दैट एनालिसिस फ्रॉम देयर कि कर्मा बाहर गया, अब रिजल्ट आएगा वापस इन द फॉर्म ऑफ फेट और डेस्टिनी और रिजल्ट, है ना. तो शशि, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अकेला, so I mean, I'm just asking कि क्या मैं अकेला ये सब कुछ क्रिएट कर रहा हूँ? All these people, all these situations, yes, मैं क्रिएट co-creation हो रहा है. Because others are not doing anything. They are doing. That's why I said co-creation हो रहा है ना. Okay. People in your life are there because they have a karmic account with you. Right. है ना. तो आप दोनों मिलके जैसे एक मूवी बना रहे हो, दोस्ताना लगा लो. हाँ, तो आप और आपका फ्रेंड मिलके एक दोस्ताना की एक मूवी बना रहे हो, तो मूवी में को क्रिएटर है ना. वो कुछ एक्टिंग आप कर रहे हो, कुछ रोल वो प्ले कर रहा है, कुछ विलन भी होंगे, कुछ हीरोइंस भी होंगी, कुछ कॉमेडियंस भी होंगे, सब कुछ लाइफ है.
पर ये मूवी आपकी है. हम्म, सो दिस इज कॉल्ड माई ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए दोस्ताना. हाँ, तो आपने मूवी बनाई है दोस्ताना जो आपकी ऑटोबायोग्राफी है. रिटर्न, प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड, स्क्रिप्ट राइटेड, एवरीथिंग बाय लेस्ली. हम्म, अदर्स आर एक्टिंग. और क्यों एक्ट करने आए हैं? बिकॉज उनका ही कार्मिक अकाउंट है आपके साथ. तो उस कार्मिक अकाउंट को जैसे जैसे क्लियर करते जाएंगे, मूवी को या तो कॉमेडी में आएगी या ट्रेजेडी में आएगी, ये आपके हाथ में है. Whether you want to experience suffering and misery or a tragedy in your life, that is your choice, your karma. And if you want to create a comedy movie full of comedy and happy ending, that is also a possibility. तो आप अपनी लाइफ को किस तरफ लेके जाओगे, आपके कर्मास पे डिपेंड करेगा. And co-created by other actors. That is what life is, right? So look at it from that point of view and things will be clear. And उसके पीछे की एनर्जी जो है वो इमोशन है. So that is what is the topic of our discussion today. कि how तो do इसमें you सरेंडर कहाँ है? सरेंडर कहाँ है फिर? सरेंडर और लेट गो तो आप इमोशंस या थॉट्स को ही करोगे ना. आपके पास क्या है जो आप सरेंडर करोगे, बताओ. क्या बोलते हैं? मन से, वचन से, कर्म से, तन से, मन से, धन से, यही तो है आपके पास. इसी को तो सरेंडर हाँ, करोगे. और सरेंडर राइट. किसको कर रहे हो? सरेंडर मेरे किसको को करोगे? यू आर सरेंडर नॉट. टू, हाँ, सरेंडर टू हुम? नॉट टू whom, टू लाइफ बेसिकली. हाँ, तो लाइफ को मतलब सरेंडर टू द डिवाइन और सरेंडर टू द हायर सेल्फ, है ना. तो आप डिसॉल्व कर रहे हो अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को. जो अनवांटेड है उसको लेट गो करोगे ना. तो लेट गो का मतलब यही होता है, लेट गो, जाने दो ऊपर. तो वी लेट गो, वी सरेंडर, वी गिव अप. तो ये सब एक ही चीज है. दैट मीन्स इफ इट इज नॉट माई प्रॉपर्टी, इट इज नॉट माई पोजिशन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई लेट गो. मैं छोड़ दिया, नहीं चाहिए मुझे एंगर नहीं चाहिए, लेट गो. मैंने देखा मुझे गुस्सा आ रहा है, आई ऑब्जर्व माई एंगर एंड देन आई से लेट गो. सो दैट इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग इन दिस सेशन. हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे चले गए हैं, तो वापस आके हमको दोबारा से स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा. बट वी आर टॉकिंग ऑफ थॉट्स, वी आर टॉकिंग ऑफ इमोशंस. एंड द आइडिया इज व्हाट इज इमोशन, how do we let go of that emotion, and we can take a few examples of few emotions, how they can be dangerous if we suppress them, and how to express them naturally, and that is what will give you emotional freedom. So that is the whole discussion of this topic today. Yeah. Okay. So just be in the session and let's have some discussions, and something beautiful will open up. Just meanwhile, welcome Veena ji and welcome Anup ji. And I would request others also to be participative, because otherwise it is a dialogue happening between me and Leslie. Where are the others? तो जिनको अगर कोई सवाल पूछने हो या कुछ शेयर करना हो, please go ahead so that we know you are there and you are listening and you're participating. Yeah. So Vijay ji, Baljinder ji. Shashi sir, I'm on this side. Yes, Aman ji, go ahead. Shashi sir. हाँ अमन जी, आप अनम्यूट हो, अनम्यूट करिए. हाँ, शशि सर, मेरा क्वेश्चन ये था, when we look into the emotions part, we had our own great saints, Lord Gautam Buddha. Okay, Gautam Buddha was there, Guru Nanak was there, and all the other gurus, and so many other saints. And all these people have never, or rather, we have never heard, or we have never seen or read, not seen, read, that any of these great saints had ever expressed anger. So the question here is that, who is the person who controls the anger? He is the ultimate winner of his emotions. I won't say control. You have to let go of that anger. अभी उसी की हम बात कर रहे थे, when I was talking to Leslie, let go. And if you recall, when you're talking of the great people, if you recall the discussion of anger with Buddha, what does Buddha say? बुद्धा कहता है, अगर तुमको गुस्सा आ रहा है तो आप उस इंसान के जैसे हो जो हाथ में जलता हुआ कोयला लेके वेट कर रहे हो कि जब कोई दूसरा आएगा तो मैं उसके ऊपर डालूंगा. जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक कौन जल रहा है? आप खुद जल रहे हो, है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंगर एंड इफ यू कैन ऑब्जर्व योर एंगर, then you can let go of that anger. And Buddha was, before that, before he got enlightened and before he became Buddha, so Siddhartha was basically a very emotional person. He was very full of compassion. किसी का दुख देखता था उसके आंसू निकल आते थे, है ना. एंड उसने यही कहा कि अगर दुख की निवृत्ति करनी है तो मेरे को
सत्य की खोज करनी है. That's why he started his journey. Suffering. Everywhere there is suffering. He said, is there a solution to this suffering? And anger was one part of it. Yeah. So we will look at these emotions and we will see how we can let go of these, how we can surrender these emotions so that we can experience some kind of freedom from there. So that is what the purpose of this session is. Yeah. So it is not about controlling anger or not suppressing anger. It is about experiencing and expressing the natural emotion in a natural way. That is emotional freedom. So we will see that. Yeah. Okay, good. Sure, thank you. Yeah, let's acknowledge Aman, and yes, Leslie, go ahead. Oh, अभी अमन जी ने बोला gods have not expressed anger, तो मुझे suddenly Gods नहीं, he शिव said जी saints and बड़े जो enlightened लोग हैं उनकी बात कर रहे थे. Gods की कहानियों में तो बहुत गुस्सा है. हाँ, मैं वहीं पे पूछ रहा था. मैंने कहा शिव जी तो सभी कुछ वो कहानियां हैं. You have to understand these are stories built around you can say the deities, so that the message is rightly taken. अल्टीमेटली यही बता रहे हैं कि जब गुस्से में जब श्राप दे दिया तो उसकी वजह से उनको पूरी तपस्या का उनका फल निकल गया, फिर वो दोबारा तपस्या करने चले गए. दैट मीन दे लॉस्ट देयर एनर्जी, है ना. तो इन नॉर्मल टर्म से हम यही बोलेंगे, अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मैंने अपनी सारी तपस्या, अपनी सारी पावर, सारी सब चीजें डिसॉल्व कर ली. नाउ आई हैव टू अगेन रीगेन दैट पावर. सो लुक एट इट दैट वे. ओके, यस अनूप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं. Okay, that's fine. All right. So now we move on into a little bit depth into the discussion. We have seen what is emotion, energy in motion, and it gives you the power behind your actions, right? What are the type of normal emotions that we can experience in our life? So fear is one, anger is one, grief is one. So we will take these three for example so that we can analyze other emotions also accordingly. अब ये इमोशन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? किसी भी ट्रिगर से आ सकते हैं, और ये इमोशंस ऑलरेडी आपके चित्त में हैं, which means you are already experiencing. These seeds are there, they are dormant, they get activated by the situation outside, triggered, correct? अब अगर ये इमोशन आ रहे हैं, इनको हम सप्रेस कर लें तो डेंजरस है, और अगर एक्सप्रेस करें तो ऐसा ना हो कि एटम बॉम्ब की तरफ फूट जाए दूसरे पे. तो हमको एक्सपीरियंस करना है और एक्सप्रेस करना है इन ए नेचुरल वे. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल फ्रीडम, वट एवर यू कॉल. आप कोई भी नाम दे सकते हो. इमोशनल इंटेलिजेंस आजकल चलता है, हाँ, तो IQ बोलते हैं, इमोशनल क्वोशिएंट बोलते हैं, तो EQ भी बोलते हैं उससे. या तो व्हाट इज EQ? EQ इज बेसिकली सेइंग दैट एक्सपीरियंसिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस इन ए नेचुरल वे. नेचुरल वे का मतलब है सप्रेस भी नहीं करना और डिस्ट्रक्टिवली एक्सप्रेस भी नहीं करना. तो वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इमोशन. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल. फियर लेते हैं, ठीक है. फियर का पर्पस क्या है? हर इमोशन के पीछे एक पर्पस है. अगर वो पर्पस सॉल्व कर लेते हो तो वो नेचुरली एक्सप्रेस हो जाएगा. फियर का मतलब क्या है? एक सिचुएशन है जो थ्रेटनिंग लग रहा है, सिचुएशन इज ओवरवेलमिंग, तो वो थोड़ा थ्रेटनिंग लग रहा है जिसकी वजह से डर आ गया है. क्लियर है ये? तो फर्स्ट we don't have to suppress the fear. Fear है, पहले तो acknowledge करो. First thing we need to do is as a person caught in a situation, okay, this situation is overwhelming, this situation is dangerous or may not be dangerous just because I am feeling nervous or panicky. 1000 लोगों के सामने बात करना पड़ रहा है पहली बार, नर्वसनेस होगी, एंजाइटी होगी, कोई बात नहीं, पहले acknowledge कर लो. The first thing in that process is to first acknowledge that there is a situation and this is the emotion I am experiencing. इसका मतलब क्या बोलेंगे? मैं ये नहीं बोलूंगा I am angry या I am fearful. fear की बात करें, I am fearful, no. I am panicky, no. I am anxious, no. ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि I am anxious में आपने एंजाइटी और अपने बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रखा है, ठीक है. फियर और आई एम फेयरफुल का मतलब है, आई एम स्केर्ड का मतलब है आपने अपने और फेयर के बीच में कोई गैप नहीं रखा है, आपने फेयर को पूरा का पूरा अपना लिया है. यू आर इन द फुल इम्पैक्ट. So what is the first statement that we should say?
आई एम एक्सपीरियंसिंग द इमोशन ऑफ फियर। अब थोड़ा सा गैप आया, बेशक 1 मिलीमीटर का गैप आया, थोड़ा सा गैप आया मेरे और फियर के बीच में। आई एम एक्सपीरियंसिंग, एंड अगर मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं तो मैं अगर 5 सेकंड के लिए शांत बैठूं, आई कैन सेपरेट दैट फियर फ्रॉम मी। और जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आए, उस समय इमीडिएट एक्शन नहीं लेना, पोस्टपोन इट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, टेक सम ब्रेथ, लंबी सांस लो, पानी पियो, थोड़ा सा डिफ्यूज करो सिचुएशन को। यू कैन सी दैट इमोशन सेपरेटली, एक्नॉलेज द सिचुएशन, एक्नॉलेज द इमोशन, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब फियर का पर्पस क्या है? फियर का पर्पस क्या है? प्रिकॉशन। फियर का मतलब है खतरा है, डेंजरस है, टेक प्रिकॉशन। अब कुछ फियर ऐसे होंगे जो जेन्युइन है। अब रेलवे ट्रैक पे खड़े हो और ट्रेन आ रही है, दिस इज ए जेन्युइन ऑथेंटिक फियर। वी से ऑथेंटिक फियर मीन्स विच इज रियली हार्मफुल फॉर योर फिजिकल और यू कैन से सर्वाइवल। तो ट्रेन आ रही है, आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हो तो डरना चाहिए। अगर आप पानी में गिर गए हो और वो रिवर है और आपको तैरना नहीं आता, तो ये सिचुएशन, पानी अगर रिवर देख रहे हो पूरा हेवी फ्लडेड कंडीशन में है और आपको अगर नदी पार करने में डर लग रहा है तो लगना चाहिए। इफ यू डोंट नो स्विमिंग यू आर गोइंग टू ड्राउन, करेक्ट? तो फियर का पर्पस क्या है? सर्वाइवल। फियर का पर्पस है टेक प्रिकॉशन, आगे खतरा है। हमने स्कल मार्क देखे हुए हैं, डेंजर का सिग्नल होता है कहीं, तो हम जाके क्या करते हैं? छू के देखते हैं? नहीं। लाइव वायर, डोंट टच। 10,000 वोल्ट्स, आप दूर रहते हो ना उससे, क्यों? प्रिकॉशन। तो फियर का पर्पस सिर्फ प्रिकॉशन है। यू टेक द नेसेसरी प्रिकॉशन एंड गो अहेड विद द एक्शन। फियर को ओवरकम करने का एक ही तरीका है, गो अहेड विद द एक्शन, बट विद द नेसेसरी प्रिकॉशन। What is important is, hello, am I audible? Yeah, no, I can't see anybody, so freeze हो जाता है, पता नहीं चलता, right? So yeah, we're talking of fear, हाँ। तो फियर में आपको क्या देखना है? ऑथेंटिक फियर क्या है? ऑथेंटिक फियर है जान का खतरा है, फिजिकली इंजरी की उम्मीद है, तो वो डेंजर है, उसको एक्नॉलेज करो, प्रिकॉशन लो, और फिर अगर हेलीकॉप्टर से भी कूदना हो तो पैराशूट लेके कूदो, पानी में घुसना है तो आप जो भी है सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह लेके जाएंगे, है ना? पानी में भी लोग जाते हैं, जिनको पानी से डर लगता है वो भी जाते हैं राफ्टिंग के लिए, यस जाते हैं। क्यों? अपना पूरा प्रोटेक्शन किट लगा के जाते हैं। आसमान से कूदना है तो पैराशूट लगा के कूदते हैं, हाँ, व्हाटएवर। सो प्रिकॉशंस लेके करते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स, यस पॉसिबल, यू कैन ओवरकम द फियर, यू कैन। टेकिंग एक्शन इन स्पाइट ऑफ द फियर, दैट इज द वे टू गो अहेड विद द फियर, करेक्ट? अब फियर को अगर सप्रेस करेंगे तो क्या होगा? ये तो हो गया कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे एक्सपीरियंस करना है। आपने एक्नॉलेज किया, आपने प्रिकॉशन लिया और आप एक्शन में चले गए, फियर ओवरकम हो गया। पर अगर फियर सप्रेस कर रहे हैं, सप्रेस करोगे तो क्या होगा? फियर को जब हम सप्रेस करते हैं तो कैसे निकलता है? फोबिया, बहुत ही अननेचुरल तरीके से निकलेगा। फोबिया, पैनिक, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक सुना है सबने, हाँ? तो ये सब क्यों आ रहा है? बिकॉज यू आर सप्रेसिंग द फियर। फियर को इतना सप्रेस कर रखा है कि आपके अंदर प्रेशर कुकर की तरह वो बनता जा रहा है और एक दिन वो फूटेगा। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ सप्रेसिंग ऑफ द इमोशन। तो फियर को एक्नॉलेज करो, प्रिकॉशन लो और एक्शन लो। एंड मैनी ऑफ द फियर्स आर अनऑथेंटिक, मतलब नॉट रियल। मैं 15 लोगों के सामने अगर स्टेज पे जाके बात करूंगा तो मर जाऊंगा, नहीं मरोगे। ये इनऑथेंटिक फियर है, आज तक कोई नहीं मरा। हाँ, हार्ट अटैक हो गया अलग बात है, लेकिन बात करने की वजह से आज तक कोई नहीं मरा। तो पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल इज अ फियर विच इज इनऑथेंटिक। इसमें जान का खतरा नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी सी हिम्मत करोगे, पहली बारी शायद बहुत अच्छा नहीं होगा, दूसरी तीसरी बार हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ अस हैव हैड फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? I was one of them. I could not open my mouth in front of people. And now if I don't speak, my whole livelihood is based on what I speak, correct? So get that, it is a fear. With practice and with some confidence level or with some
intentional effort, you can overcome any fear. क्लियर है? तो हाइट से डर लगता है, जाओ माउंटेनियरिंग जाओ, प्रिकॉशन लेके जाओ. पानी से डर लगता है, जाओ, राइट? स्क्यूबा डाइविंग करते हैं लोग, पूरा किट लगा के ट्रेनर के साथ स्विमिंग पूल में जाते हैं लोग, डर के मारे पानी से डरते हैं, पानी ओवरकम करते हैं फिर, है ना? So how many of us have overcome our fears? I'm sure all of us must have overcome at least one fear in your life. तो fear को ढूंढो, प्रिकॉशन लो और एक्शन में कूद जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता. And you will experience freedom. This is for fear. And by the way, let me tell you that fear का full form है. Now this is on the humorous side, but it is very, very valuable. False evidences appearing real. 95% of the fears never happen in your life. अगर आप अपने fears की 10 टॉप मोस्ट fears की लिस्ट बनाओ, उसमें से 9 ऐसे होंगे जो आज तक हुए ही नहीं है लाइफ में, ना ही होने वाले हैं. तो ये इनऑथेंटिक fear है, इमेजिनेशन है. Making sense? Yes? Right. So anybody who wants to share about the fear that you have, share any fear. आपका कोई fear है, अभी भी है अगर, तो उसको हम बता सकते हैं क्या एक्शन प्लान होगा, कैसे एक्सपीरियंस करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है. बिकॉज fear सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इमोशन है, क्योंकि हर इंसान को मरने का डर तो है ही है. तो fear ऑफ डेथ तो एक है ही है. अगर आप जिंदा हो तो आप मरोगे, पक्की बात है. एंड डेथ का टाइमिंग अनसर्टेन है. डेथ इज सर्टेन बट टाइमिंग इज अनसर्टेन. सो एवरीबडी इज लिविंग इन ए some kind of fear of death. और fear of death भी एक्चुअली में क्या है? fear of unfinished stories. आपकी आधी अधूरी कहानियां अंत हो जाएगा, ये आपको डर है. आपकी इच्छाएं रह जाएंगी और आप नहीं पूरे कर पाओगे, ये डर है. तो आपकी जो आधी अधूरी कहानियां हैं वो जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होने वाली हैं. तो तरीका क्या है उसका? उस कहानीकार को ढूंढ लो जो ये कहानियां बना रहा है. जिस दिन वो मिल जाएगा, आपकी कहानियां आधी अधूरी बंद हो जाएंगी. उसको बोलो कहानी पूरी हो चुकी है, आधी अधूरी कहानियां लिखना बंद करो. एंड दिस इज द benefit of spirituality. When you walk on this path, you will meet that storyteller in you and you will tell a story is whole, complete, perfect. इसको incomplete करने की जरूरत नहीं है. Story is done. कॉमेडी है, इसको ट्रेजेडी मत बनाओ. Making sense? Yes. So that's about fear. Anybody who wants to ask anything, please go ahead. Okay. No questions? So no questions means I hope everybody is listening and everybody is agreeing to it, huh? So you know how to handle your fear. और fear ऐसा कैसे हो सकता है कि fear किसी को नहीं है? हाँ? Fear of cockroach, fear of lizard, ये सब तो बहुत common होते थे बचपन में. All the ladies I think are shit scared of a lizard or a cockroach. And not only women, even the men. I was damn scared of cockroach. And it was not actually a fear, it was a repulsion. वो दिखता था मेरे को कुछ हो जाता था. And especially in the bathroom. या बाथरूम में या तो कॉकरोच रहेगा या मैं रहूंगा, दोनों नहीं रह सकते. So one of them have to leave. So there are many other ways how you are allergic to things, right? Right. So that's about fear. Yes, Tarun, you have unmuted yourself. You want to share something? Yes, Tarun. fears के ऊपर जो नो सर fears के ऊपर जो डिस्कशन चल रहा था बस वही कि fears are always to pull back and overcoming that is the fight that everybody has to do. So I also overcame by a lot of fear of how to अपनी स्टेट से बाहर निकलने का ही डर था, कैसे बाहर निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा. किस चीज का? The state I was in the अच्छा, state of mind, I है ना, got that. हाँ. that उससे निकलने का पहले एक डर था. तो but with eventually doing the right, taking the right actions has helped me personally to move forward. So fears are there always in the life, but important are actions which you are already in line. And सबसे stupid fear होता है अब क्या होगा? हे भगवान अब क्या होगा? अब जो होगा होगा, जब होगा तो देख लेंगे. अब क्या होगा is such a Absolutely. unknown fear that you are fear of the unknown. आपको मालूम नहीं किस चीज से डर रहे हो.
आज तो सुनता हूँ कल क्या होगा, कल क्या होगा कैसे मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है ना. You get my point? So the fear of unknown is actually you have no idea of who you are. That's all I would say. If you say tomorrow I have to go for a meeting and I am scared, I can understand that much. At least चीज मालूम तो है किस चीज से डरे हो. कईयों को भूत से डर लगता है. हाँ, लाइट चली जाए, सीढ़ियां उतर रही हो, पीछे से कोई हाथ आके आपके कंधे पे रखेगा और आप मर जाओगे. हाँ? मुड़ के देख लो एक बार. हाँ, अगर भूत पीछे है तो मुड़ के देखने से कुछ फाइट तो कर सकते हो. हाँ, नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना और डरना भी है. So you need to understand lot of fears are inauthentic, don't happen. तो कल क्या होगा, जब होगा तो देख लेंगे. सिचुएशन तो आने दो, सिचुएशन से पहले क्यों डर, right? So that's about fear. Let's acknowledge everybody who shared. Yeah. Okay, next important emotion you can take it as anger. Anger ले लेते हैं क्योंकि fear और anger सबसे कॉमन है इमोशन. एंगर का पर्पस क्या है? फेयर का पर्पस तो हमने देख लिया, प्रिकॉशन है. जान का खतरा है तो सेफ्टी मेजर्स ले लो. एंगर का पर्पस क्या है? There is a purpose. Every emotion has a purpose. You fulfill that purpose, it is a natural expression. हाँ. Anger क्या है? Dominance? It is to express the disagreement. Disagreement. Very, very good. Perfect. Anybody else who wants to share? Leslie, you were saying something? I was saying dominance. नहीं, that is not the purpose. Anger का purpose ये है disagreement. भाई सामने कुछ हो रहा है और मुझे पसंद नहीं है. Don't do it. You simple I response will think a be. little, Yeah. little reflection of dominance is actually same disagreement. Okay, you can put it that way also. But dominance in the sense that not to dominate. Purpose domination का नहीं होता है. Purpose ये होता है कि जो आप कर रहे हो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मत करो. That is the beginning of anger. पर हम नो बोल नहीं पाते हैं, तो वो सप्रेस हो जाता है. हाँ, खासकर बॉस को नहीं बोल सकते ना, वाइफ को नहीं बोल सकते. तो जो अथॉरिटी में होता है उसके सामने हम ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, मत करो. तो वो सप्रेस हो जाता है. तो एंगर सप्रेस होना बहुत नॉर्मल है. होता क्या है, सप्रेस होता जाता होता जाता होता जाता है. अल्टीमेटली आप प्रेशर कुकर बन जाते हो और फिर एक दिन ब्लास्ट होता है. फिर वो क्या होता है, एंगर बन जाता है रेज. फिर आयरन रॉड लिया और सामने वाले का सर फोड़ दिया, या बंदूक निकाली और 6 गोलियां मार दी, या चाकू निकाला 25 बार घोंप दिया. ये सब रेज से हो रहा है. एसिड अटैक. जेलसी भी होगा उसमें, रेज भी होगा, जो भी होगा. करेक्ट. सो ऑल दिस इज है एक्शन full of what? Simple expression of I don't like it, don't do it. अगर इतना बोलना हमने सीख लिया, नो बोलना सीख लिया, नो सहना भी सुन लिया, मतलब नो सुनना भी अगर सह लिया हमने, आ गया नो बोलना, आ गया नो सुनना, आ गया, आपका एंगर बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएगा. बट वी डोंट डू दैट, वी सप्रेस इट एंड देन इट बिकम्स ए रेज. करेक्ट. और एंगर के बारे में एक और चीज बता दूं, हम हर एक पे गुस्सा नहीं करते. नाउ दिस माइट बी इन द सबकॉन्शियस, बट हम हर एक पे गुस्सा नहीं करते. किस पे गुस्सा करते हैं? हम उस पे गुस्सा करते हैं जो हमारे नखरे बर्दाश्त करता है. हम उस पे गुस्सा करते हैं जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. अपने बच्चे पे, 10 साल का बच्चा है, उसको 2 थप्पड़ भी मार दोगे, कहाँ जाएगा वो? कहीं नहीं जा सकता, रोएगा, फिर वापस आ जाएगा. राइट, सॉरी बोल के आ जाएगा गलती करके. राइट. या जिसको पूरा डोमिनेशन में है, बॉस जूनियर पे दिखाएगा, हस्बैंड वाइफ पे दिखाएगा, या वाइस वर्सा जो भी है. तो गुस्सा हम जानबूझ के करते हैं और उस पे करते हैं जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. सोच के देखो एक बार, आपका आधा गुस्सा वहीं खत्म हो जाएगा. किसी सूमो पहलवान के सामने जाके गुस्सा दिखाया है? वो जोर से सांस लेगा तो हम उड़ जाएंगे. तो उसके सामने गुस्सा नहीं करेंगे ना. और ऊपर से पिक्चरों में बहुत कुछ दिखाया हुआ, एंग्री यंग मैन, एंग्री ओल्ड मैन. अमिताभ बच्चन. मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी है हम्म, कि आदमी जब बॉटल अप सिचुएशन में हो जाता है हम्म. तो वो किसी का गुस्सा किसी और पे निकाल देता है, बिल्कुल, और वो वो- जिस पे निकालता है वो वीकेस्ट आदमी में निकालता है. जैसे ऑफिस का गुस्सा या हस्बैंड का गुस्सा या वाइफ का गुस्सा निकल गया बच्चों पे या माइयों पे बिल्कुल है. या किसी टैक्सी ड्राइवर पे या ऑटो ड्राइवर पे.
बिल्कुल सही, वही मैंने कहा ना, आप गुस्सा उस पर करते हो, जानबूझ के करते हो, जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बॉस जूनियर पे गुस्सा दिखाता है, क्यों? क्योंकि सुबह उसकी वाइफ ने उसे डांटा होता है। हाँ, अब बॉस क्या करेगा, जूनियर क्या करेगा, आके अपने जूनियर पे डांटेगा, या वापस आके अपने घर में अपनी वाइफ या अपने बच्चे को डांटेगा, या उसने वाइफ को डांट दिया, और वाइफ की क्या करेगी उस समय, तो वो कुछ नहीं कहेगी, सुन लेगी। क्यों? क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट है। आप बॉस की डांट क्यों खा रहे हैं? क्योंकि आपकी उसके ऊपर जॉब डिपेंडेंट है, आपकी इनकम डिपेंडेंट है उस पर। आप घर आके वाइफ को डांट रहे हो, तो वाइफ क्यों डिपेंडेंट? वाइफ आप पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो सुन रही है। उसके बाद वो बच्चे को मार देगी, क्यों? कि बच्चा उसका क्या बिगाड़ लेगा, बच्चा उस पर डिपेंडेंट है। समझ रहे हो? तो एंगर भी हम सोच समझ के करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक के सामने गुस्सा दिखाते हैं। माँ बाप पे गुस्सा दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि वो बर्दाश्त करते हैं हमको। नीड टू अंडरस्टैंड। सो हम अपना वर्स्ट बिहेवियर अपने क्लोज लोगों के लिए रखते हैं। वी रिजर्व अवर वर्स्ट ट्रीटमेंट, वर्स्ट बिहेवियर with the people who love us most, mostly the parents या brothers sisters. Yes or no? सोच के देखो. So now you know the most two important emotions we have considered today, fear and anger. उसका एक पर्पस है और अगर वो हम नेचुरली हैंडल कर लें तो आराम से एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस हो जाएगा। सप्रेस करेंगे तो वो बहुत गलत तरीके से निकलेगा, which will be harmful and destructive for relationship, for physical well-being, even mental and emotional well-being. Correct? So anybody who wants to share on any other emotion, you can go ahead. Another thing about anger that I've seen is कि you end up taking wrong decisions. डिसीजन तो हमेशा ही गलत होगा ना जब इमोशन के हाई पीक पे हो। इसीलिए इमोशन के पीक पे कोई डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए। पोस्टपोन ऑल योर एक्शंस एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। जब गुस्से में हो कोई डिसीजन मत लो, कोई ईमेल मत भेजो, कोई बात मत करो, कोई एक्शन मत लो। 5 मिनट तक रुक जाओ, ऑब्जर्व दैट इमोशन, क्रिएट ए गैप बिटवीन यू एंड योर एंगर, और सिचुएशन काफ़ी ठंडी हो जाएगी। 10 मिनट बाद मेल दोबारा रीचेक करके भेज दो, 10 मिनट बाद जो बात करनी होगी दोबारा कर लो, राइट? But the most important thing is that you should be able to create a gap between you and your emotion. That is the beginning of emotional freedom. जब इमोशन पीक पे है तब कोई भी एक्शन मत लो। बोलते हैं कईयों को, बच्चों को सिखाते हैं 20 तक गिनो फिर मारना। तो 20 तक गिनने तक गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए। ठंडा पानी पी लो, 1 गिलास पानी पी लो। ये सब तरीके क्या हैं? थोड़ा सा गैप बना रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, ताकि क्योंकि ये साइन कर्व में उठता है इमोशन और फिर नीचे गिर जाता है। Normally, anger will not last for more than a couple of minutes. Heat of the moment में जो भी होता है होता है। So if you can choose your emotion, if you can observe your emotion and delay that action for 2 minutes or 3 minutes, you would do a lot better in your life, in saving yourself from the physical, mental, emotional well-being, and also saving your relationships. Yes or no? Agreed? Agree? Yes or no? Hello? Yes. 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 Good. Right. So any other emotion you want to check? क्योंकि यही तरीका है, एक एक इमोशन करके देखना है कि कौन सा इमोशन आप पे हावी है, और उसको उसका सही पर्पस देख के सही तरीके से उसे एक्सप्रेस कीजिए और उसको लेट गो करिए। अब लेट गो पे आते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बट हाँ, go ahead. शशि सर, एक हाँ एक जी। क्वेश्चन है मेरा। जो अभी आपने एंगर के बारे में डिस्कशन किया था, हम्म, वो था जो गिवर है, राइट? देयर आर टू people involved. One is the giver, another is the taker. Now the Hmm. taker will also have something called tolerance. हम्म। So is that an emotion? And that is a positive thing. So that cannot be let go of, right? We cannot let it go of. See, you पर्सन डिपेंडेंट होगा, बर्दाश्त इसलिए करेगा क्योंकि वो डिपेंडेंट है ना। अब मान लीजिए अगर मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ सर, बॉस वो मतलब और एक सेकंड, बॉस और जूनियर अगर बात कर रहे हैं, बॉस चीखा चिल्ली कर रहा है, गाली दे रहा है, फाइल उठा के मुंह पे मार रहा है उसके, वो क्यों बर्दाश्त कर रहा है? डिपेंडेंट है वो आश्रित है उस पर।
अपनी जॉब के लिए, अपने पेचेक के लिए, यस और नो? इस डिपेंडेंसी से फ्रीडम होनी है, क्योंकि इस डिपेंडेंसी के कारण वो विक्टिम मोड में चला गया, एक विक्टिम बन गया है, एक विलन बन गया है, दोनों ईगो का ही Okay. गेम है, ठीक है? अब But वो sir, हस्बैंड many वहां पे times क्या विक्टिम होता बना है? हुआ है, वहां पे मार खा रहा है, वो घर जाके चौधरी बन जाता है। अब वो विलेन बन गया, अब विक्टिम कौन बन गई? वाइफ। क्यों? क्योंकि वाइफ डिपेंडेंट है उसके ऊपर, ठीक है? तो डिपेंडेंसी के कारण लोग विक्टिम बनते हैं एंड इसी के कारण बर्दाश्त करते हैं। सोच के देखिए। अब सर इसी को अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखते हैं सर, तो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि एक बंदा एग्रेसिव हो जाता है रोड फाइट में या कहीं पर बाहर, और हाँ, एक बंदा थोड़ा सा फिर भी लाइट रहता है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि मतलब शायद देखिए, वो अगर भी उतना ही डिपेंडेंसी की एनेबल्ड, बात उतना ही नहीं है तो फिर पावरफुल। ताकत की बात है। अगर डिपेंडेंसी की ओके। बात नहीं है, बॉस जूनियर की बात नहीं हो रही, सड़क पे दो आदमी लड़ रहे हैं, तो फिर वो ताकत की बात है। वो ताकत से डर रहा है दूसरे से, है ना? डरने के बहुत सारे रीजन है ना, करेक्ट? तो वहां तो क्लियर कट फाइट है ना, ताकत की बात हो रही है, जो जो ज्यादा ताकतवर होगा वो मार देगा उसको। तो सर जो डिपेंडेंसी वाला रोल अभी आपने बताया था, अगर ये रिवर्स हो तो? रिवर्स हो तो रिवर्स होगा, विक्टिम की जगह विलन ले लो, विलन की जगह विक्टिम बना दो, और क्या होगा? वो दोनों दोनों एंगर में रहे, वैसा स्टेट भी तो रहती है तो ना? एक्सप्लोजन होगा, और क्या होगा? अच्छा। एक्सप्लोजन होगा। तो रिलेशनशिप ब्रेकडाउन होगा, डिवोर्स होगा, अगर हस्बैंड वाइफ की भी। मान लो बॉस ने जूनियर को बहुत सुनाया, जूनियर आया जो भी है, थका हारा मारा जो भी है, ड्रिंक विंक करके आया घर में, अपनी बीवी को लड़ाई हो गई उसकी अपनी बीवी से, और वो भी वर्किंग है। अब वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा, मारधाड़ होगी, डिवोर्स हो जाएगा, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन होगा ना फिर। इक्वेशन समझो। डिपेंडेंसी नहीं है तो टकराव होगा, टकराव होगा तो एक ना एक को हार नहीं पड़ेगा ना, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। ब्रेकडाउन तो होगा रिलेशनशिप का। अनजान लोग हैं तो वो ताकत पे होगा। तो टू अंडरस्टैंड सिचुएशन क्या है लाइफ की, उसी हिसाब से आगे बढ़ेगी बात। तो इसमें करना क्या है? हाँ, सबसे पहले तो विक्टिम ईगो से बाहर निकल के आ जाओ। रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए? सेल्फ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, फ्रीडम, कम्युनिकेशन, ये प्रॉपर होना चाहिए। जूनियर को मालूम होना चाहिए बॉस अगर चिल्ला रहा है तो वो उसकी कोई ताकत नहीं है, वो खुद ही विक्टिम है, वो बीमार है। कोई बीमार अगर चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो, तो क्या करते हैं? उसको दवा दारू करते हैं ना, उसका इलाज करना होता है। So if somebody is sick, you have to treat him like that only. Why should you fall sick because somebody else is sick? वो बीमार है, मैं भी बीमार हो जाऊं? I recall one incident in our organization, क्रॉम्पटन ग्रीव्स की बात करूं, जब मैं मार्केटिंग एंड सेल्स में था। तो एक बॉस था, नोटोरियस था, सबकी मतलब फुल विलन था, और सबके विक्टिम मोड में सबको बैंड बजाता था। तो सारे लोग चुप रहते थे, सुन लेते थे जो भी है। एक उसमें से जूनियर था, वो बागी आ गया, वो बोलता था, वो जोर जोर से हंसने लग जाता था। वो मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तू हंस रहा है, कहता तो देख तो सही, तू बोल क्या रहा है? कहता आ जाओ, अंदर आ जाओ, रीजनल मैनेजर के साथ जाके बात करते हैं, वो बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, डिस्कस कर लेते हैं। फिर 2 बार ऐसा बोला, वो तीसरी बारी वो शांत हो गया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो भी तभी तक विलन बनेगा जब तक आप उसे बनने दोगे। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी फ्रीडम और अपनी चॉइस, चॉइस मतलब कम्युनिकेशन सही ढंग से रखोगे, पीपल विल ट्रीट यू विथ रेस्पेक्ट। बस यू हैव टू रेस्पेक्ट योरसेल्फ, स्टॉप बीइंग ए विक्टिम। ओके, ये डिस्कशन कुछ ज्यादा ही उसमें जा रहा है, बट या इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, समथिंग इज ओपनिंग अप, यू कैन डू दैट। ठीक है, राइट? एनी अदर इमोशन दैट यू वांट टू डिस्कस बिफोर वी गेट ऑन टू हाउ टू लेट गो? जेलसी सर। ओके, जेलसी बेसिक इमोशन क्या है? जेलसी तो सप्रेस्ड इमोशन है। इमोशन जब सप्रेस हो जाता है तो जेलसी आती है। उसका प्योर फॉर्म क्या है इमोशन का, जेलसी का? एनीबॉडी?
आभास आभास, ये क्या है? आई डिडंट अंडरस्टैंड। मतलब आभास मीन्स मेरे अंदर कमी है, आई एम क्रिटिकल अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे अपने अंदर कमियां दिखती हैं। Okay, that could be one, but it is better expressed as envy. Envy, दूसरे को देख के मेरे को लग रहा है यार ये वाली क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है, उसके अंदर है, ये envy है। So it is like a healthy competition कि उसके ये बोलने का स्टाइल बड़ा अच्छा है, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को ये सीखना है। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन के जैसे एनवी आती है। एनवी इज ऑलवेज पॉजिटिव, एनवी इज नॉट नेगेटिव। हाँ, तो किसी को देख के जैसे जैसे क्रिकेट वर्ल्ड में अगर हम बात करें, सहवाग सचिन तेंदुलकर को देख के बोलता था कि यार इसके जैसे खड़ा होना, इसके जैसे शॉट मारनी, और वो वैसे ही कॉपी करता था। इफ यू सी इनिशियली सहवाग यूज्ड टू बैट लाइक सचिन तेंदुलकर, वैसे ही खड़ा होता था, वैसे ही शॉट मारता था, एंड देन लेटर ऑन ही क्रिएटेड हिज ओन। So is to actually emulate Sachin Tendulkar. So when you are trying to emulate somebody for his good qualities, it is called envy. तो envy is positive. लेकिन वो सप्रेस हो जाता है तो क्या निकलता है? जेलसी। जेलसी क्या है? उसकी टांग टूट जाए, वो मर जाए, हाँ, और मैं उससे आगे बढ़ जाऊँ, ये जेलसी है। तो जेलसी कैन बी डेंजरस। यू हैव सीन जेलस लवर्स, ओवर पॉसेसिव लवर्स। ये सब कहानियां जेलसी की कहाँ से आती है? जब इमोशन सप्रेस होता है। यस, तो अमन, इज दैट ओके? जेलसी इज ए नेगेटिव इमोशन। उसका बेसिक हेल्दी कंपटीशन के हिसाब से देखो कि क्या उसमें है जो मुझ में नहीं है, उसको डेवलप करने की कोशिश करो, मोटिवेट हो जाओ उससे। तो एनवी इज ए पॉजिटिव इमोशन, जेलसी इज नेगेटिव। मेकिंग सेंस? यस, यस और नो? Aman, do you have a follow-up question? Okay, so we will leave at that. Anybody No, else? sir. Thank you so much. Okay. I got the clarification. Good. Let's acknowledge Aman and Tarun and Leslie who are sharing. Yes, and Anupji, of course. Yeah. Yes, Sirat Malhotra ji, welcome. Namaskar. Yes, anybody else who has any question on emotions? So we have seen 3 basic emotions. There are many. In case you have any further, we can look into it. Grief is another emotion which I wanted to touch. Grief is what? Sadness because of separation, है ना? तो आपको गुड बाय बोलना पड़ रहा है जब आप उसके लिए तैयार नहीं हो, दैट इज ग्रीफ। द सिंपलेस्ट वे इज व्हेन यू गो टू रेलवे स्टेशन और व्हेन यू गो टू द एयरपोर्ट, कोई किसी को सी ऑफ करना है, जो फीलिंग आती है अंदर कि हाय ये जा रहे हैं, अभी जाने का मन नहीं है, बट वो तो सिर्फ फिजिकली डिस्टेंस हो रहा है। इन द केस ऑफ डेथ और इन द केस ऑफ डिवोर्स, द सेपरेशन इज परमानेंट। अब उसके बाद वो आपकी जिंदगी में नहीं आ रहा है, ब्रेकअप में। तो वो ग्रीफ ज़्यादा होता है। तो वो ग्रीफ को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस करो, एक्सप्रेस करो कि ठीक है भाई, पार्ट ऑफ लाइफ। बट अगर वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो क्या होगा? सेपरेशन का गुड बाय अगर करना चाह रहे हो, मतलब हो रहा है सेपरेशन और गुड बाय के लिए तैयार नहीं हो, तो ग्रीफ होगा। इसीलिए हम बोलते हैं जब कोई डेथ भी होती है तो उसको बोलते हैं इस बंदे को रुलाओ, द पर्सन हैज़ टू क्राई। क्योंकि ग्रीफ अंदर रहेगा तो वो पूरे सिस्टम को पॉइजन की तरह खत्म कर देगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, एंड सुसाइडल भी टेंडेंसी आ सकती है। तो ग्रीफ इज इंपॉर्टेंट टू बी हैंडल्ड। यस, सो दीज आर अ फ्यू इमोशंस व्हिच यू कैन look at life and how these can be very, very important. Now, having talked of the emotions, we have crossed 10 o'clock, huh? So I'll quickly summarize it. Let go कैसे करेंगे? सबसे पहले इमोशन को ऑब्जर्व करो, कौन सा इमोशन आ रहा है। And don't say I am angry, say I have a emotion of anger. I am not scared, I have an emotion of being threatened or being fearful. उसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उसका नेसेसरी प्रिकॉशन लिया और उसको सही ढंग से एक्सपीरियंस अगर एक्सप्रेस किया। दैट इज इट, सिंपल। जैसे जैसे आप इसको ऑब्जर्व करते रहोगे वैसे वैसे आप इमोशन से फ्री होते जाओगे। दिस इज द स्टेट ऑफ इमोशनल फ्रीडम। यस,
So that is the session for today. Anything anybody wants to share? Otherwise, we will close the session. आज ज़्यादा discussion हो नहीं रही है. Yes, Leslie. एक लास्ट क्वेश्चन है सर, आपने अभी बोला हाँ. कि don't say I am angry, I say I have an emotion of anger. Hmm. So how are these different? You are creating a gap. I am angry में it becomes a label, it becomes an identity. I am an angry young man, I am an angry old man. बच्चन को देखा है ना, बच्चन की इमेज बन गई थी. I'm talking of अमिताभ बच्चन जी. हाँ. Okay. तो वो इमेज नहीं बनानी है, आइडेंटिटी नहीं बनानी है. आइडेंटिटी बन गई तो नहीं छूटेगा. इमोशन आएगा जाएगा, ऑब्जर्व करो, आप फ्री हो जाओगे इमोशन से. Sure. Thank you. That is what it means. Yeah, very good. Let's acknowledge Amanji. So with this thought, I will close the session today because not many people are interested in sharing. So, sir, I would say, हाँ, जब grief की बात है, Hmm. we need knowledge only. Like if you have that knowledge, जो आया है वो जाएगा, उसने जाना ही है. You need a guru, the right, who tells you it had to happen that way. एक तो Yes. प्रारब्ध पे भरोसा होना चाहिए, it had to happen. yes, और दूसरी अपनी ताकत होनी चाहिए कि जो बात होनी थी हो गई, खत्म ना हो. ये धीरे धीरे आएगा, ये एकदम से नहीं आता है, शुरू में नहीं आता, ये बाद में आता है. और उस आने के लिए जो प्रैक्टिस करनी है वो यही करनी है कि मान लीजिए कि दुख होगा तो दुख को एक्सपीरियंस करो और एक्सप्रेस करो. वो बेसिक इंटेलिजेंस है. बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बहुत बढ़िया. Let's acknowledge सीरज जी. या और कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा लगा, बहुत good. अच्छा लगा. Thank you. Take care. And with this, we come to the end of the session. So thank you very much for your participation. Enjoy a great day. Enjoy a great week. Watch the recording. And we meet again next week with a lot more topics. Till then, Aham Brahmasmi. Enjoy. Take care. Good night. Thank you, sir. Thank you.